ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ایکسپریس و خیر رمضان میں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہم ایسے موضوعات لے کر آتے رہتے ہیں جس کا انسانی زندگی میں اور ہمارے آج کل کے معاملات سے بڑا تعلق ہے۔ آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے مہمانان موجود ہیں جو خلق خدا کی خدمت میں دن رات مصروف ہیں، جو کہ ننھے پھولوں کو مرجھانے سے بچانے کے لیے سرگرم ہیں، اور ایسے پھول جو مرجھانے جا رہے ہیں ان کو ایمرجنسی میں طبی امداد نہیں ملتی۔ ننھے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور پاکستان میں اگر صرف ہم اس تعداد کی بات کریں تو تقریباً سالانہ 4 لاکھ بنتی ہے۔ بالکل، اور ہم بات کریں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے حوالے سے، جس کے سی ای او ڈاکٹر احسن ربانی کا کہنا ہے کہ بچوں کو بروقت صحت کی سہولیات فراہم کر کے 50% یعنی کہ 2 لاکھ بچوں کو زندگی کی بازی ہارنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں تو سندھ اور بلوچستان کے سرکاری ہاسپٹلز میں یہ کام کر رہی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ مہمان موجود ہیں۔ ڈاکٹر عرفان حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عابدہ حسن ہے، سینئر مینیجر کوالٹی اینڈ اسٹریٹجی چائلڈ لائف فاؤنڈیشن۔ دونوں کو ویلکم کریں گے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور عابدہ صاحبہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں ہماری ٹرانسمیشن میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے ہم چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں، اس کا تھوڑا سا عابدہ صاحبہ اس کا اسٹرکچر ہمیں بتا دیجیے گا کہ کس طرح سے ورک کرتا ہے، میکنزم کیا ہے اس فاؤنڈیشن کا۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن بہت سمپل ماڈل پہ کام کرتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے بچوں کی زندگیاں بچانا، اور ماڈل یہ ہے کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے ورلڈ کلاس ایمرجنسی سینٹرز اسٹیبلش کیے ہیں پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں، کیونکہ سب سے غریب اور سب سے بیمار بچے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں آتے ہیں۔ یہ ورلڈ کلاس ایمرجنسی سینٹرز فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا جو اسٹاف ہے وہ ٹرینڈ ہے، میڈیکل اکوپمنٹ ہے جو کہ انٹیگریٹڈ ہے ہمارے کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ۔ اٹ از اے ٹوٹلی پیپر لیس انوائرمنٹ، اینڈ آلسو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ فری آف کاسٹ میڈیکیشن ہے، ٹوٹلی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے، اینڈ اٹ از آپریشنل 24/7۔ ماشاءاللہ ایک تو یہ 10 ایمرجنسی سینٹرز کا سیٹ اپ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اکراس سندھ اینڈ بلوچستان، اینڈ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہم آگے بڑھیں گے باقی دونوں صوبوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جو میں کہوں گی کہ ہیلتھ کیئر میں ایک انوویشن ہے چائلڈ لائف کی، یا ایک ہیلتھ کیئر ریولیوشن ہے، وہ ہے ٹیلی میڈیسن کا، جو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے اسٹیبلش کیا ہے۔ پاکستان کے DHQs ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلز اور تعلقہ لیول ہاسپٹلز کے اندر سیٹلائٹ سینٹرز اسٹیبلش کیے ہیں اکراس سندھ اینڈ بلوچستان۔ اچھا، جہاں پر ہمارا ہائی ریزولیوشن کیمرہ ہوتا ہے، ایک نرس ہوتی ہے جو کہ ہمارے کراچی میں جو ہمارا ایک سینٹرلائزڈ یا اس کو کہیں کہ ایگریگیٹڈ سینٹر ہے، جہاں پر سینئر فزیشنز ہر وقت موجود ہوتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے، تو وہاں سے وہ نرس ان بچوں کے لیے کنسلٹ کرتی ہے ان فزیشن سے جو کہ ٹرینڈ ہیں ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی اور زبردست آپ یہ دیکھیے کہ یہ ریولیوشن کیوں ہے ہیلتھ کیئر کے اندر، کیونکہ پاکستان کی 1/3 سے زیادہ آبادی جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، اور وہاں سے ان کے لیے ہیلتھ کیئر کو ایکسس کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس وقت جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے وہ اس کو لے کر قریبی کسی بڑے شہر میں پہنچے، اتنا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، بالکل صحیح، تو وہ قریبی جو بھی تعلقہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ اپنے بچے کو لے کر جا سکتے ہیں اور لائف سیونگ کنسلٹ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ہیلتھ کیئر ریولیوشن ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور طریقے سے آپ بتا رہی ہیں، میں ان ڈیٹیلز بھی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے فردر پلانز کیا ہیں۔ ویسے بڑا اچھا آپ نے ایک ہمارے سامنے نقشہ رکھ دیا کہ کیسے آپ کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان، میں آپ سے ان ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وچ ایکچولی میڈ دس فاؤنڈیشن کہ وہ اس کے لیے کام کرے۔ وہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں جو آپ نے آبزرو کی ہمارے ان رورل ایریاز کے اندر، اور مینلی آپ کن چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ بچوں کی جان بچ جاتی ہے؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بتائیے ڈاکٹر عرفان۔ ڈاکٹر خان آپ سے کوشچن؟ یس، مجھ سے کوشچن کیا، لیکن مجھے آواز صحیح سے آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنیکلٹی، جو عابدہ نے ہمیں بتایا کہ جو ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر ہے اس میں ایک نرس، یا آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ رات کے وقت عموماً ماہر ڈاکٹر جو بچوں کا ہوگا وہ ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل میں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر گاؤں میں شاید موجود نہ ہو۔ تو جو بچہ ایک بیمار وہاں پہ سپوز نمونیا کا یا دمہ کا یا ڈائریا کا بچہ جب وہاں پہ آتا ہے تو اس کے جو بھی بیماری کا علاج ہے وہ یہاں پہ چائلڈ لائف کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر
टेली मेडिसिन के कैमरे के जरिए उसको जूम करके देखता है और बच्चे की सांस की रफ्तार को देखता है, और जो नर्स है उसको उसके दिल की रफ्तार, सांस की रफ्तार, टेम्परेचर वो चेक करके बताती है। और यहाँ का जो टेली मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो उसको वो दवा एडवाइस करता है जो कि नर्स वहाँ पे एडमिनिस्टर करती हैं, और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में डॉक्टर है जो कि जिसका शायद बच्चों में तजुर्बा इतना ज़्यादा ना हो, तो वो उसको वो चेक साइन ऑफ करा के और उसके ज़रिए वो सारा उसका इलाज करते हैं। तो अब तक चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 31 लाख बच्चों का इलाज कर चुकी है। अच्छा, अपने 10 साल के अरसे में हम 31 लाख बच्चों का इलाज इस वक्त कर चुके हैं इन 10 इमरजेंसी रूम्स और टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर के। अच्छा आबिदा साहिबा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे बिकॉज आपने अभी टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स के हवाले से बात की, और ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन किस तरह से इस पे वर्किंग करता है, क्या मैकेनिज्म होता है बेसिकली, और इसमें जिस तरह से आपने कहा दूर दराज इलाकों में जहाँ ये फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे आप लोग ये प्रोवाइड करते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा मॉडल है कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल हॉस्पिटल है वहाँ पर एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाकर एक ट्रेंड नर्स वहाँ पर होती है जिसको सिखाया जाता है वर्ल्ड क्लास ट्रियाज, कि बच्चों का ट्रियाज कैसे करना है। ट्रियाज करके वो उनकी बेसिक डिटेल्स लेके, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स लेकर जो सीनियर फिजिशियन होते हैं जो कैमरा के उस तरफ हैं एग्रीगेटेड सेंटर में, उनसे कंसल्ट करती हैं। इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के 25 सैटेलाइट सेंटर्स जो हैं वो अक्रॉस सिंध एंड बलोचिस्तान काम कर रहे हैं, जिसे फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान में हब है, खुजदार है, डेरा मुराद जमाली है, सिंध के अंदर मिट्टी है, सेवन है, घोटकी है, नौशेरो फिरोज में हम प्लान कर रहे हैं अभी इस्टेब्लिश करने का। तो इस तरह से 24 सैटेलाइट सेंटर्स अक्रॉस सिंध एंड बलोचिस्तान काम कर रहे हैं, एंड वी हैव अ प्लान कि अक्रॉस पाकिस्तान इस तरह के 500 सैटेलाइट सेंटर्स एस्टैब्लिश करें ताकि हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो हर बच्चे। अच्छा आबिदा, ये भी आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है ओब्वियसली पाकिस्तान में, जच्चा बच्चा की जो सेहत है, दोनों की मसाइल बहुत ज्यादा हैं। कहीं पे माएँ बच्चे जनते हुए उनका इंतकाल हो जाता है, और बच्चों के हवाले से तो आपको ओब्वियसली आप काम कर ही रहे हैं। बुनियादी तौर पे हम ओवरऑल इस रेशो को कम क्यों नहीं कर पाए अभी तक? इसकी बुनियादी तौर पे आपको क्या वजूहात समझ में आती हैं? नंबर 1 और नंबर 2, हम अगर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो आप पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, जो हमारी इतलातें, करेक्ट भी कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो उसमें हुकूमत का कितना हिस्सा होता है, या सिर्फ आप अपने ओन पे अपने एहतियात के ऊपर ही काम करें? जरा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी कि देखिए अभी तक अमवात को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सके हैं, उसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज ही नहीं है। अब डायलेमा ये है कि आज भी पाकिस्तान में जितने बच्चे मर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, उसमें से ज्यादातर बहुत ही आम सी बीमारियों की वजह से अमवात हो रही हैं, जैसे कि नमोनिया है, जैसे कि डायरिया है, बच्चे डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं, बच्चे एंटीबायोटिक के टाइम पे ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप होना, वहाँ पर ट्रेन डॉक्टर्स और नर्सेज का मौजूद होना, और वहाँ पर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि पर्पस बिल्ड एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है ये डेथ्स को कंट्रोल करने के लिए। ये जो डेथ्स हो रही हैं ये कोई बहुत ही ऐसी बीमारियों की वजह से नहीं हो रही हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या दुनिया में मौजूद नहीं है। सिर्फ ये है कि वो सहूलियात मैसर नहीं है जिनसे ये अमवात को बचाया। मतलब बिल्कुल बेसिक दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, कह सकते हैं। जी बिल्कुल बेसिक जो लाइफ सेविंग नीड्स हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, वो स्किल्स हैं, वो मौजूद नहीं है। तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैलाना होगा अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के बच्चों को और उनकी माओं को बचाएं। ठीक हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन अगर जी जरूर आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। आप सेकंड दूसरा मेरा पॉइंट था पब्लिक सेक्टर के साथ चूंकि आप मिलके काम कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, तो जहां पे एक ये निज़ाम खराब है वहीं पे इसका फायदा ये भी है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है सरकारी अस्पतालों का, जो आप जैसी फाउंडेशंस को बड़ा हेल्प करता है कि आपने कहां पे जाके अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। तो इसकी आप रिसोर्स एलोकेशन कैसे कर रहे हैं? क्या खुद से ही कर रहे हैं या गवर्नमेंट भी साथ खड़ी होती है? क्योंकि यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस तो ऑलरेडी इस हवाले से काम कर भी रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन क्यों गवर्नमेंट सेक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा गरीब बच्चा
या पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बीमार या सबसे ज्यादा गरीब मरीज यहाँ पर आता है, ये वही लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा इलाज की सहूलियात की जरूरत है। और जहाँ तक बात है कंट्रीब्यूशंस की, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने एक मॉडल इस्टेब्लिश किया सिविल हॉस्पिटल कराची में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। और सर्टनली गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। उस वक्त के जो वहाँ पे वाइस चांसलर थे, ये उनका ख्याल था कि सेटअप बनाना एक और बात है, उसको रन करना एक दूसरी चीज है। तो उनके मशवरे से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने फर्स्ट टाइम एक चिल्ड्रन इमरजेंसी को रन करना शुरू किया और इसी मॉडल को फिर रेप्लिकेट किया NICH में, फिर कुरंगी 5 नंबर में, अब्बासी शहीद में, लियारी जनरल हॉस्पिटल में, फिर इसी तरह से अपर सिंध के अंदर नवाब शाह, लाड़काना, हैदराबाद, सखर, इन सब सेंटर्स में, कोयटा में सिविल हॉस्पिटल कोयटा में ER है। तो इन सब सेंटर्स में देखिए गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। और क्या ही अच्छी बात हो कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे जो 5 सूबे हैं इस वक्त, वहाँ पर हर जगह, हर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में एक चिल्ड्रन इमरजेंसी हो जो कि हर वक्त तैयार है बच्चों की जानें बचाने। ठीक हो गया। अच्छा, आप दोनों में से कोई भी सवाल है कंट्रीब्यूशन का। जी प्लीज डॉक्टर साहब। उसमें एक बड़ा सिंपल, जी मैं सिंपल जवाब एक ये कहूंगा कि हमारा सबसे बड़े पार्टनर जो है वो हुकूमत है, क्योंकि हम उनकी जगह पे होते हैं, उनकी जगह पे काम कर रहे होते हैं और उनके लोग भी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक टेक्निकल सपोर्ट का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चों की इमरजेंसी के हवाले से जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज से आज आप अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले अंदाजा लगाएं तो बच्चों की इमरजेंसी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं एक डॉक्टर या नर्सेस के अंदर, उस ट्रेनिंग का बड़ा फुकदान था। एक बेसिक लाइफ सपोर्ट के, बच्चा जो कार्डियक अरेस्ट में आता है उसका CPR कैसे हो, बच्चों में जो टाइमिंग ऑफ एंटीबायोटिक है वो क्या होनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स। इसी तरह ट्रियाज का सिस्टम मुतारिफ कराने में पहली दफा ये 10 साल पहले जब चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन आई तो किसी भी हुकूमती सरकारी अस्पताल में पहली दफा चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने ट्रियाज का सिस्टम मुतारिफ कराया। और ट्रियाज ये होता है कि बच्चे जो भी आते हैं वो टोकन लेके नंबर से नहीं लगेंगे, बल्कि जो उनकी शिद्दत होगी बीमारी की उसके लिहाज से एक नर्स उनको फिल्टर करती है और टाइमली उस बच्चे को मैनेज हो जाना, ये सबसे बड़ी चीज है। That's really good. That is the technical support we are doing। और पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट कोर्सेज हैं जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर कराती है। और अब तक हम 1000+ नर्सेज और डॉक्टर्स को पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट में ट्रेन करते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि आपने कहा है कि जो हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी अमवात की वजह बहुत सारी आम बीमारियां, मतलब आम बीमारियों का शिकार होकर भी इसी वजह से इसका रेट ज़्यादा है। सहूलियात उन आम बीमारियों के इलाज के लिए तो मौजूद हैं, उन तक एक्सेस से अलग बात हो सकती है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आप समझती हैं कि लाइल्मी या कम इल्मी या अवेयरनेस का ना होना। मिसाल के तौर पर एक बच्चा, उसके अंदर नमकियात की अचानक कमी हो गई है और अगर उसकी माँ को उनको एक बेसिक नॉलेज का पता है तो भी बहुत हद तक ये सेव किया जा सकता है। तो ये हवाले से अवेयरनेस, यानी बच्चों के हवाले से वालिदैन की अवेयरनेस भी में कमी आप महसूस पाती हैं? जी बिल्कुल। इसमें चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने जो एक इनिशिएटिव लिया है और पिछले 7-8 सालों से हम जो मरीज हमारे इमरजेंसी रूम में आते हैं उनकी मदर्स का मोबाइल नंबर हमारे पास होता है। अच्छा। और उन मदर्स के मोबाइल नंबर पे उर्दू जुबान में एक मैसेज जाता है कि अगर आपके बच्चे को डायरिया या दस्त या उल्टी की बीमारी लगे तो आपने क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं। आपने अगर घर में ORS पैकेट मौजूद नहीं है तो आपने घर में ORS चीनी और नमक और पानी के साथ कैसे बनाना है और बच्चे को किस तरह पिलाना है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स के जो प्रोग्राम हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अपने हर इमरजेंसी, जो 10 इमरजेंसी रूम्स में बच्चे आते हैं तो उनकी माओं को ये मैसेज भी जाता है। Such an impressive network you people have and we really appreciate the way you are working। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, चूंकि हिफाजती टीके बहुत जरूरी है, हिफाजती टीके बहुत जरूरी हैं, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप चूंकि यहाँ पे मौजूद हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दो कि आपने कहा कि इसमें सूबाई हुकूमतों का बड़ा शेयर है। हम यहाँ से ये भी यकीनी तौर पे अपील करते हैं कि वफाकी हुकूमत शुड आल्सो स्टैंड विद यू और आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया जाना चाहिए और सूबे सारे मिलके। लेकिन आप अपना जो फाइनेंशियल ग्राउंड्स हैं उसके हवाले से भी अगर आप कुछ बात करना चाहें, कोई अपील करना चाहें देखने वालों से, तो यू आर मोर देन वेलकम। इसमें मैं ये कहूंगा लोगों को, देखें ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए और पाकिस्तान की आवाम से हमारी गुजारिश है, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके चैनल की तवज्जो से, हम उनको कहते हैं कि वो उस इमरजेंसी रूम में आके एक दफा उस काम को देखें और
जब वो उस काम को फील करेंगे, देखेंगे, तो जो पैसा है उसको देने के लिए पाकिस्तानी कौम बहुत तैयार है। आपने ज़लज़ले में देखा होगा, सैलाब में देखा होगा कि पाकिस्तानी कौम पैसा देने के लिए हमेशा तैयार होती है। पैसा निकालना मसला नहीं है, लेकिन असल चीज है जेन्युइन जगह वो खर्च हो रहा हो। तो मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि वो जरूर आए इमरजेंसी रूम में, जिना अस्पताल में, सिविल अस्पताल में रात के वक्त आए और रात के वक्त आके देखें कि क्या वो काम उसी तरह हो रहा है, उसी जज्बे से हो रहा है जैसा कि सुबह में हो रहा होता है, और जो कि मैं आपको या आबदा आपको यहाँ बैठ के बता रहे हैं, क्या वही जज्बा वहाँ मौजूद है। दूसरा, हमारी एक साइट है www.childlifefoundation.org। लोग उस पे घर पे बैठ के इंटरनेट के जरिए जा सकते हैं। उसमें तमाम तफसीलात दी हुई हैं कि आप डोनेशन किस तरह दे सकते हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो भी, आबिदा आप भी, मैं चाहूंगा अगर आपको आबिदा साहिबा भी कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें। मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपना दिल खुश करना चाहते हैं तो आप वो पुराने ख्यालात के पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, वो ख़राब होता है, या वहाँ पर सेहत की सहूलियात उस तरह से मैसर नहीं होती जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल जाते हैं, या फास्ट ट्रैक नहीं होते। तो आप जरूर एक दफा आकर जहाँ पर चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की इमरजेंसी इट इज़ अ वेरी सिंपल मैसेज कि आप अगर चाहें तो 1000 रुपए में एक बच्चे की जान बचा सकते हैं। और रमज़ान माशाल्लाह से ऐसा महीना है कि हम चाहते हैं कि जितनी नेकियां हम कमा सकें कमाएं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफान और आबिदा साहिबा। और हम कोशिश करेंगे हमारी, डॉक्टर इरफान आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कहना चाहूँगा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगराज़ व मकासद जो आपने शुरू में पूछे टेक्निकलिटीज़ वो अपनी जगह, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि गरीब माँ बाप को ज़हनी सुकून फराहम करने के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने ये काम किया। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप लोग बहुत जबरदस्त काम करें। हम कोशिश करें इस फाउंडेशन में हमारी टीम आए, इसको विजिट करे, और आप लोगों को हम अपनी मॉर्निंग शो का फॉरम हो या एक्सप्रेसो खैर रमज़ान का फॉरम हो, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को भी इनकरेज करें कि वो इस कार खैर में हिस्सा लें, जितने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम करें। बच्चों की ज़िंदगी बचाना, किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर ट्रांसमिशन।